Assalamualaikum, class 8. Hope you will be fine. Here I am Saima Aslam to teach you the grammar tree. Dear students, today we are going to start our first chapter, nouns. And my dear students, I hope you have information. You have already information about what a noun is, and now something about nouns categories or noun kinds. But in this chapter we will discuss more vividly or more clearly about the noun and its kinds also. Students, here is a definition of noun. You know, nouns are words denoting things and people. For example, house, tree, child, water, teacher, etc. They may also denote abstract ideas or feelings. For example, truth, happiness, honesty, etc. Students, here is your first exercise. Let's remember. लेट्स रिमेंबर मीन आइए हम इसको रिकॉल करें या हम इसको दोहराएं कि आप नाउन के बारे में क्या जानते हैं या आपको नाउन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है. एक्सरसाइज नंबर ए इज़ अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कि दिए गए सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है हमने नाउन्स को. 1. Anita drew some funny cartoons in her painting class. Anita, cartoons, class, noun. Sentence number 2. Basketball and cricket are Rehan's favorite games. Basketball, cricket, Rehan games are noun. Sentence number 3. My friend keeps his 2 dogs in a kennel. Friend, dogs, kennel are noun. Sentence number 4. Salman lives in Zohab with his mother, father and sister. Salman, Zohab, mother, father and sisters are noun. Sentence number 5. The teacher asked the students to leave their notebooks in a pile on her table. Teacher, students, notebooks, pile, table. Sentence number 6. These cotton dresses are quite inexpensive. Dresses, noun. Sentence number 7. The captain steered the ship towards the island. Captain, island are noun. Sentence number 8. Kathy fed bananas to the elephants at the zoo. Kathy, elephants are noun. Sentence number 9. Old songs were played on the radio on Monday night. Songs, radio, Monday night are noun. Sentence number 10. My mother got me a bouquet of red carnation on my birthday. Mother, bouquet, carnation and birthday are all noun. Students, 10 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. मेन 10 सेंटेंसेस हैं. इसमें आपको हर सेंटेंस में नाउन को चूज़ करना है. मीन नाउन वर्ड को अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पे मैंने तमाम वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है. सेम इसी तरह आप अपनी बुक पे भी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी बुक पे इस काम को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट आगे देखिए जी, हमारे पास एज यू ऑलरेडी नाउ nouns are broadly classified into the following types. कि nouns के आगे कुछ types दी गई हैं जिन्हें हम आगे further discuss करेंगे. For example, proper nouns, common nouns, collective nouns, compound nouns, material nouns, countable nouns and uncountable nouns. ये तमाम categories noun की दी गई हैं जिनको हम आगे पेज नंबर 2 पे further डिटेल में डिस्कस करते हैं. जी स्टूडेंट्स, नाउन्स की देखिए आप यहाँ पे गिवन है जी टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड टाइप्स ऑफ नाउन्स. फर्स्ट देखेंगे जी हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. पर्सन्स आर थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एग्जाम्पल्स गर्ल, डॉग, कंट्री. एक ही जैसी काइंड की तमाम चीज़ें
आम चीज़ों को या आम जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। प्रॉपर नाउन नेम्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस आर पर्सनस। पर्टिकुलर मीन ख़ास अहमियत के हामिल जो प्लेसेस आर पर्सनस हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, रिजा। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट यू कैन सी collective noun. Collective noun means a collection or group of people or things of the same kind. एक जैसी किस्म की या एक ही किस्म की जो चीज़ें या चीज़ों का ग्रुप या इंसानों का ग्रुप हो तो उससे हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास, हर्ट। नेक्स्ट आगे हमारे पास देखें जी मटेरियल नाउन नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। उन मटेरियल्स के नाम या सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम आगे अपनी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ब्रॉन्ज से वुड, सीमेंट, आयरन, ये तमाम हमारे पास मटेरियल्स नाउन है जिनकी मदद से हम नेक्स्ट अपनी चीज़ें वगैरह बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काइंड इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम नंबर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स ट्री, मैन, अ कार एंड आइडिया। दीज में बी सिंगुलर और प्लूरल। वी कैन यूज़ आ और एन विद देम, कि हम इनके साथ आ और एन आर्टिकल्स यूज़ करके तो हम बता सकते हैं कि ये सिंगुलर यूज़ हो रही है या प्लूरल। नेक्स्ट आगे जी काइंड है कंपाउंड नाउन। वर्ड्स मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, कि वो हम कंपाउंड नाउन में दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों हमारे पास नाउन होते हैं। एग्जिस्टिंग मीन जो वर्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड, वॉशिंग मशीन, आर्म चेयर, ये दोनों हमारे पास फॉर एग्जांपल देखिए जैसे वॉशिंग मशीन और ये दोनों हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद आर्म चेयर, ब्लैक बोर्ड, हम इन दोनों को जब एक वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं या कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल्स मीन थिंग्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स, कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम नंबर्स को यूज़ करते हुए काउंट नहीं कर सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं। एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन, मनी, सैंड। दीज डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, कि अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। वी डू नॉट यूज़ आ और एन विद देम, हम इनके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे आप देखेंगे जी कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि कॉमन नाउन हमारे पास नेक्स्ट आगे टू कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड हो रहा है जो कि कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल देखेंगे जी कंक्रीट नाउन्स आर नाउन्स विच रेफर टू थिंग्स वी कैन सी, टच एंड फील, कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल द गर्ल टुक द डॉग फॉर अ वॉक। In this sentence, the word girl and dog are the examples of concrete noun. Abstract nouns are nouns which refer to things that we cannot touch or see, कि वो तमाम उन चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या जिन्हें हम देख नहीं सकते। These can be names of a quality, state और concepts. ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारी कोई भी क्वालिटी है, हमारी स्टेट, हमारी कोई भी कंडीशन और कॉन्सेप्ट या हमारा कोई भी आइडिया या हमारी थॉट। फॉर एग्जाम्पल ही नेवर गेव अप हिज लव फॉर एनिमल्स इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस हर्डल्स। अब इसमें देखें जी लव और हर्डल्स, लव मीन प्यार, हर्डल्स मीन मुश्किलात। इनको हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम इनको देख रहे हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी में आ रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड द टुडेज़ टॉपिक एंड मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया, नाउन और उसके काइंड्स के बारे में। अब यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हियर इज़ अ टास्क फॉर यू। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक नज़र आ रही है पेज नंबर 1 में। टू फाइंड आउट if a word or a phrase is a noun or can function as a noun, check if it can
सक्सेसफुली फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो। बहुत ही आसान और बहुत ही बिल्कुल क्वाइट आसान एक्टिविटी है जो आपके लिए। इसमें उन्होंने बोला है कि आप चेक करें कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा फ्रेज़। चलिए आप फ्रेज़ को रहने दें, फ्रेज़ को मैं आपको फर्दर डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी। आप इसमें कोई भी ऐसा वर्ड फिट करें, कोई भी ऐसा वर्ड लिखें जो एज अ नाउन हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ इट कैन देन इट इज़ अ नाउन और कैन फंक्शन एज अ नाउन। आप इसमें कोई भी एक सिंगल वर्ड पुट करें और वो वर्ड आपका क्या होगा, नाउन कहलाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और आपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करने हैं। आई विल वेट फॉर योर व्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।